if you've done this, if you've done the book earlier or you know about the book. Yep, twice, Suvarna and Payal. Okay, wonderful. Yes, and you are continuing with the practices, right? Yes, sort of. I was a little caught up in some health challenges of the family member. So then, otherwise, whatever possible, yes, I can. Okay, okay, lovely. So why did you decide to, let's come back to this, like why did you decide to redo the book since you've already done it twice and you are in practice? Why? Yes. Factor is you. Thank you so much. Yeah, that's very nice. Thank you, Ramadi. Yes. Welcome. Thank you so much. Yes. So someone who has joined the session who has not done it earlier, have just heard about the book or the book's name intrigued you. Someone would like to share? See, it's an interactive session. Okay. So you'll have to share and tell us someone. I see some names who have already done the book earlier in this session. Would you like to share? Hello, No? good evening. Yeah, good evening. Myself, Leena Joshi. Okay. I've just heard it from my auntie and very much interested in, going through. I saw that it's for 30 days, right? Yes, yes. Yeah, I've heard very less about it. Whatever she told me, only I have that knowledge. So definitely I want to go through that. Oh. And where are you from, Leena? I'm from Jalgaon. Okay. Okay. Maharashtra, yeah. Yes, okay. Wonderful. So I'm sure that you are going to see like quite a few magics in your life. Yeah. And you are going to see some changes happening in yourself, and that is what will attract magics in your life. Yes. Yeah, Wonderful. definitely. I just want to go through it because my auntie has definitely explained me a lot about it. And she told me to read the book. She told me to attend the session, but earlier it was not possible for me. So I'm very eager to know about it, like exactly what it is. Okay, wonderful, wonderful. I'm sure you are going to enjoy the sessions. If you are doing the practices regularly, you will surely enjoy and see the changes that you want. Okay, and I think Ruhi ji, you want to thank you, Leena ji. Ruhi, Thank you so much. thank you. Ruhi, you also want to say something? You raised your hand, Ruhi Joshi. Hi, sorry, I was just saying hi to everyone. Oh. I thought that's another way of saying hi. And then I figured out I had to lower my hand as well. So I did. Thank you. Okay, thank you. So, anyone else wants to say something? Yes. Sahil, you have raised your hand. Hi, Priya. Hello. Oh, yes. Hi, Sagita ji. How are you? I'm great. Wonderful. Thank you. How are you? I'm also wonderful. Yeah. So it's so nice to have you back. It's really amazing. We're waiting for you. And it's great. Thank you. Meeting you, seeing you, talking to you gives so much of positivity. And it's I was missing you very much. And so happy to see you back. Yes, yes. Thank you. I am also so happy. True, Sangeeta ji, I ditto that. I ditto that too. So yes. I'm also very, very glad, you know, to have my nephew is also there. Sahil is there. He's also joined. Yeah, I was just going to say, like, I don't need to really explain why I'm here because Tarini's younger brother. on my Mausi's face. Okay. So, yeah, but like your reading sessions were a big part of my family dinner routine for the past month. Okay. So you decided enough now. I also want to be in part of you this. know, actually, my sister had ordered the book for me already, and it's going to come day after. And so now she's decided this is a much better outlook for me. Definitely, definitely. You know, reading the book, I won't say it's a bad idea just to read. It's a very good idea to read the book in itself. Like that's how I started in the first session. But in an interactive session is very good because you can raise your doubts, you can have your questions answered, and you can learn and, you know, from the sharings of the others as well. So that's why, and then you're accountable. You like the session is there, then you know, oh, I have to do this practice. Everyone has done. Why is my life not getting magical? So all this you get to feel, hear, you know, and see for yourself when you're in a session. So welcome. Like
very good. I hope you are there. I'm sure you'll be there in the journey for the next 30 days. Yeah. Thank you and welcome. Anyone else wants to say something? What you are expecting from this session? Yes. I want मतलब मुझे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. हम आराम से देखिए, रीडिंग हम लोग इंग्लिश में ही करते हैं क्योंकि इंग्लिश बुक पढ़ेंगे हम लोग, और मेरे पास डिस्कशन हिंदी बुक है. ओके, मेरे कोई पास बात नहीं, हिंदी बुक है. कोई बात नहीं. वेरी नाइस, वेरी गुड. आपका ऑलरेडी बुक है. यस. हाँ, तो बताइए. बस उसके लिए ही पूछ रही थी कि हिंदी में मैं कंफर्टेबल रहना बस इस सेशन में. बिल्कुल. देखिए, आप अपने आप ही लिखेंगे. जो भी हम लोग इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग को डेली कुछ हम लोग को लिखना रहता है. ठीक है, तो वो आप हिंदी में ही लिखिए. हम लोग जो डिस्कशन, जो रीडिंग करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे. आप को तो और फायदा है. आप जब बाद में अपनी बुक हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो आपको अलग से और कुछ समझ में आएगा. और कुछ मतलब इन द सेंस लाइक, अपन एक बार मूवी देखते हैं तो कुछ चीज देखते हैं, जब दोबारा देखते हैं जो मिस हो जाता है वो भी दिख जाता है ना. कोई डायलॉग मिस हो गया, या किसी की ड्रेस पे ध्यान नहीं गया, किसी और चीज पे नोटिस हो गया, तो उससे आपको ही बेनिफिट है. आपका और अच्छा और फास्ट मैजिक होएगा आपके लाइफ में. नीलिमा ने बताया था मुझे. नीलिमा ने ज्वाइन कराया. ओके ओके, वेरी नाइस. तो मैं कॉपी पेन चाहिएगा क्या हमें साथ में? देखिए, ये आपका मन है. आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं आपको तो आप मार्क भी कर सकते हैं. ऐसे आई डोंट नो जनरली बाकी जन क्या करते हैं, नोट करते हैं कि आई डोंट नो बाकी लोग क्या करते हैं. पता नहीं, मैं लेके बैठना ज्यादा सेंसिबल है. जरूरत पड़े तो उठना नहीं पड़े. एकदम अच्छी बात है. यस. ओके, वंडरफुल. सो आई थिंक हम लोग इंट्रोज अब फिर कल से करेंगे, बिकॉज आज का चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा है. हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ने हैं. ठीक है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम प्रिया दुबे. I live in Calcutta I stay with my mom, my brother, and my bhabhi and my niece. I'm an interior designer by profession, and I love walking out. I love food. I love chocolates. I love reading books. जैसा होता है वैसा हमको भी अच्छा लगता है. Gossiping, chatting. Before this session, before this magic book came into my life, I was like a normal person. दुखी होते थे तो 2-3 दिन दुखी हो जाते थे. खुश हैं तो खुश हैं, तुरंत मन जैसे होता है ना, मूड ट्रिगर्स वैसे ही होते थे. किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, रिएक्ट कर दिया, गुस्सा हो गए. तो कभी लाइफ में दिन बहुत अच्छे होते थे, कभी सैड भी होते थे. सैड होते थे तो ज्यादा लंबे हो जाते थे. जैसे सबके लाइफ में चलता रहता है. कुछ अच्छा हुआ तो भगवान जी को बोल देते थे जाके. अच्छा होने के पहले जनरली प्रे करते थे. होने के बाद कभी कभी थैंक यू बोल देते थे भगवान जी को, या दर्शन कर लेते थे. थैंक यू तो बाद में आया. तो अब इस बुक से ये बुक से जब मेरा इंट्रो हुआ मेरे लाइफ में, I felt they were like phenomenal changes. Phenomenal. Best was that I started feeling more positive. Like कोई कुछ बोलता है, अभी भी बोल, people have not changed. लोग वैसे ही हैं. हम धीरे धीरे थोड़े चेंज हो गए. Like मेरा परसेप्शन थोड़ा चेंज होने लगा कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस बात पे, हम दूसरे लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो थोड़ा और सोचने लगे. जैसे पहले तुरंत किसी ने बोला, फट से तुरंत उसको कुछ आंसर जो कर देते थे, और फिर वो सिचुएशन जैसे हो जाती है वैसी हो जाती थी. अब वो सब बहुत बदल गया है. वो इसलिए बदला है बिकॉज आई स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुक. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय फ्रेंड निधि, जिसने हम लोग को सबसे पहले बोला कि नहीं, निधि पोदार, शी सेड नहीं, बुक करना है. सो आई बॉट द बुक. Me and my friend Suvarna, we bought the book. I started doing the book. Meanwhile, my another friend started the session just like how I started, Archana. उसके संग जब ज्वाइन किया तो लगा कि नहीं, ये बुक तो बहुत अच्छी है. Then Ashmin मैम came into our life. उनका सेशन जब स्टार्ट किया तब जाके वैसे भी मैजिक्स आने स्टार्ट हो गए थे. वो मैजिक इन द सेंस, मैजिक किसको बोलते हैं कि लाइफ में जो हम चाह रहे हैं वो होने. जब हम सोच रहे हैं कि हमको चॉकलेट खानी है, बिना खरीदे बिना चेयर से उठे, देखिए मेरा भाई चॉकलेट लेके आ रहा है. मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगे. जो प्रोजेक्ट्स हम चाहते थे वो मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलने लगे एट माई फीस. ओके, माने घर में जो फ्रेंड्स के संग कुछ होना था वो रिलेशनशिप्स और अच्छे होते जा रहे हैं. तो ये सब जब मेरे लाइफ में हो रहा था, तो जैसे होता है ना कि अगर कहीं पे हम लोग को डिस्काउंट पता चलता है या ये पता चलता है कि ये करने से बहुत फायदा होगा, हम लोग क्या करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को या जो हमको पसंद है या उससे हम लोग ये शेयर करना चाहते हैं. राइट. तो वैसे ही हमने अपने फैमिली में बोला. फिर मेरी फ्रेंड्स ने जब सेक्शन शुरू किया तो लगा कि यस, जितना लोगों के संग शेयर करेंगे उतना और अच्छा होगा. सेकंड, जब हम सेशन करते हैं तब हम भी ये प्रैक्टिस और फिर से करना चालू कर सकते हैं. इसलिए आई वांट, तो भगवान का नाम तो इस तरह किताब भी लिखा गया. सॉरी,
So जब हम ये शेयर कर रहे हैं तो इसमें मेरी भी प्रैक्टिस और अच्छी हो रही है, और आप लोग के लाइफ में भी जो मैजिक होंगे उससे आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। हम लोग सारी ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते होगे या कोई बड़ा जन कुछ बोलता है, ये सब वही चीजें हैं। बट क्या है, इस बुक में इतना सिस्टमैटिक, इतने अच्छे से, एकदम सिंपल तरीके से किया हुआ है कि कैसे आप अपने लाइफ में इसको और एनग्रेन कर लें अपने डेली रूटीन में। ये ऐसे सेट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। Those who have done this book earlier, I think they will share, पता ही नहीं चल रहा है, इट्स लाइक नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हो रहा है, 1 घंटा अलग से नहीं निकालना, क्या 10 मिनट खाली चाहिए हैं। एक जो मेन इसकी प्रैक्टिस है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर लाइक ब्रीदिंग, थिंकिंग, जैसे आप बाकी चीज कर रहे हैं बस वैसे ही कर रहे हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो एवरी डे व्हाट वी विल डू इज वील रीड द चैप्टर, one of you will have to volunteer, we'll read the chapter in English, उसके बाद हम in between, you know, while we are reading, बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे, and after the reading we'll do our gratitude, and जो भी उस दिन का हम लोग का हर दिन का एक तो प्रैक्टिस है। we call it practice because magic is always a practice. Anything that you practice will make it perfect, right? So it is not a homework, it is not an assignment, it is a practice that we are going to do every day. Okay, so this amazing book, The Magic, सबको खरीदनी है, ठीक है, सबके पास होनी चाहिए। पीडीएफ हमने शेयर किया है ग्रुप में, बट आई फील द फील ऑफ अ बुक इन योर हैंड। सी आई हैव बीन रीडिंग सिंस आई वाज लाइक मे बी आई थिंक 10-12, या और भी छोटे कॉमिक्स तो और छोटे से पढ़ते हैं हम लोग। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, रीडिंग एज अ हॉबी, नॉट स्कूल का बुक्स, ठीक है। तो वो जो फील आता है हाथ में बुक को लेके, वो और I think किसी से नहीं आता है। That's my view. I think people are reading, you know, on Kindle also, but I feel book is like something else. Feeling the pages flip through, you know, is amazing. So I would suggest that you please buy the book in Hindi or English, whichever is comfortable for you. You must buy the book and you know, refer to it on and off. Okay. So thank you everyone for joining the session, and I want a volunteer. Who wants to read today? I want to read, Didi. Oh, thank Swati. you. Yeah. So yes, because so many of us are new in the session, we don't know each other so well. So whoever is reading or has something to ask or share, you must take your name and introduce yourself, I think, right? And then we should do that. Thank you, Swati. So Swati, some of us are there together for a very long time, and I'm very happy to see all of you here again. Thank you, Swati. So I'll just share the book. Yeah, Swati, you can see. Yeah, Didi. Should I start reading? Yes, why no? I'm asking. Okay. Yes. So The it's Magic by Ron. Yeah, sorry. Yeah, sorry, I was saying because like today is a, you know, is the first day and we'll have to cover almost 6 chapters, so I think let's start. Okay. Yeah. The Magic by Rhonda Byrne. Yeah. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yeah, so if we see, this is the front of the book, this one, and this is written at the back of the book. Okay, so now Rhonda Byrne is telling us that in this 28-day journey, we are going to discover something amazing, and she is going to tell us how to use this secret, okay, in our everyday life. Now she's telling us that the things, that the secret that has been shared in this book was there, you know, for more than 20 centuries, like for ages it has been there, but many people did not understand this. It was almost like a riddle. Okay, so I'll leave it at that, and we'll discover ourselves what is there in the book. And she's telling us no matter who you are, okay, you can be a 10-year-old kid, a 60-year-old person, a 90-year-old person, a female, a male, anywhere, okay, and whatever you are doing, whether you are in the best of health, richest of
luxuries and best of relationships, or just the opposite of that. This book, The Magic, is going to change our entire life. It's like whatever we want, whatever we are thinking of, whatever we are expecting in our life, all that will keep coming to us. Yeah. So this book has been published by Atria Books, and this is, it has been published in many places. So we'll skip that. If you want, you can read that. We'll start the reading from here. Is it okay if we are reading 2 pages, or should I change to 1 page? And everyone has to read it, okay? As well, like Swati is of course reading, you have to read it on your own. Then I think 1 page would be better. Okay, just 1 second. Yeah, so I'll just increase the size also. Yeah, it's fine. Yeah, yes, Swati. By this means, you will acquire the whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yeah, I think, Swati, there is some network challenges. Hello? Yes, I'm not getting it Okay. correct. Should I don't read it know again? whether it's my network or... No, I think there was some issue at Swati's end. Swati, please read again. Yeah. Swati, are you there? Hello? Can you hear me now? Hello? Yes, now. Didi, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Yes, but it's on and off. So just, yeah. Let's see. Okay. By this means, you will acquire the glory of the whole world. Yes, the Emerald Tablet. Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yeah. So now this Emerald Tablet. So I have shared the link of the Secret movie with everyone. Right? How many of you saw it? If you have not, you have to see it. It's a must. Okay. So by like tomorrow or day after, you have to see the movie. It's just a 90-minute movie. And if you've seen that movie right in the beginning, okay, there was this a green thing. Okay. And someone was writing on a paper, someone was tracing from it. And it was hidden, and people were, trying to catch the guy who traced whatever was written on it. So the Emerald Tablet was actually, in the hands of a mummy in the pyramid, and the Egyptians were the most advanced, of the civilizations that started on this earth. So they are on that tablet. It was written, engraved rather, that by this means you'll acquire the glory of the whole world. Okay, and what does this means? Like something that we are going to learn in this book, and if we practice that, we'll acquire the glory of the whole world. So it's telling us that no matter what we want, no matter what our wishes are, we can get that. Okay, and just by practicing whatever is written in this text, or whatever Rhonda Byrne is sharing with us in that book, in this book. Yeah. Yes, Swati. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yeah. So Rhonda Byrne is telling us again that this book, she's telling us may, because she doesn't know if we practice it or not. Yeah. So she's telling us that it will, if we practice it the way she has told us for the 28 days, then it will open up a new world for me. It's like this is the current way we are living. This is our world. When she's telling us new world for you, means like currently I have a certain set of people around me. My financials are in a certain manner. My health is in a different way. So when I am practicing this book, the way she has designed, it will bring a new world. So like this, whatever set of situations, circumstances, relationships, finances that I am in, okay, it will totally transform to something new, of course, and it will bring joy to my entire existence. It's like whatever what will bring me joy? What can bring me joy? Something that I want, I achieve that. Okay, my relationships get better, my health is in a way that I want. Whatever I am wishing of, whatever I am dreaming of, I'll get all that. Then my life will be joyful. Yeah. So that is her intention for all of us. So what is your intention? So today, after this session, you have to write what is it that you actually want from this book in your life. Okay.
acknowledgements. Yes. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you're holding the creation of a new big book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Yeah. So most of Thank the you. times, yeah, just one second, Swati. So most of the times when we are reading a book, okay, honestly tell me how many of you actually read the acknowledgements? Tell me. Very few. I would tell you, like, though I'm sharing, I used to read so many books. Never. I don't think so. I ever read the acknowledgement. Yeah, exactly the same way. In fact, I'll tell you, after reading this book, okay, no, once in a while, कुछ छोटा छोटा लिखा होता था, तो I would read, okay. इतना सारा लंबा 2-3 पेज देख के I would never read. But now, if this book is telling us about acknowledgements, what is an acknowledgement? Acknowledgement is acceptance, showing your abhar, yeah, showing your gratitude, acknowledging the people who helped you. Acknowledging matlab, like, you are showing them your gratefulness that yes, these people helped me. यही होता है ना, जब हम लोग को award we have seen, हम लोग को तो award नहीं मिलता उतना. You must have seen in Filmfare, all these Zee movie awards, any award. All the actors who receive the award, they come and say, I'm so thankful to this, the director, the team, my family. वो लोग इतना बोलते हैं, yeah, वो ही बोलते हैं आके वो लोग. So that is an acknowledgement. So now this book is going to teach us about something. So we have to see what Rhonda Byrne, how she is, being grateful to all the people who helped her in this journey. So she's telling us when she sits down to write a book, जब वो कोई भी, हम लोग आज एक मैसेज भी लिखते हैं या लेटर भी लिखते हैं, मोस्टली हम लोग अकेले में ही बैठ के लिख रहे होते हैं, बट उसको दुनिया तक पहुंचाने में या कहीं तक पहुंचाने में हम लोग को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, कितने लाइक एडिटर्स होते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है, डिजाइनर्स होते हैं, प्रिंट होता है, बहुत सारे जन होते हैं. उन सब को वो कैसे थैंकफुल हो रही हैं. सो लेट्स रीड दैट. Thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Yeah. So Thanks now saying, just one second, Swati. Now you see, उन्होंने ये जो thank you लिखा हुआ है, अब बोलिए 3 बार क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने भूल से नहीं लिख दिया, कुछ तो एक रीजन होगा. तो हम लोग आज ये समझते हैं कि 3 बार थैंक यू काफी अच्छा होता है. लाइक कुछ तो इम्पोर्टेंट है कि वो एक्नॉलेजमेंट में इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग 1 थैंक यू, शी इज राइटिंग इट थ्राइस. ओके, सो लेट्स रीड. Thanks to my editor Cindy Black from Beyond Words for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shama Swar and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team. Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Zeke, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Key Lee, Peter Byron, and my daughter Haley. Thank you to my publishers, Atria Book and Simon and Schutzer, to Carolyn Reedy, Judith Kerr, Darlene DeLello, Twine Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Saur. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work.
and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Yeah. So in this whole acknowledgement, we saw the how Rhonda Byrne is thanking each and everyone, okay, and in a wonderful way she's thanking them. She's talking about the wonderful way how people helped her, yeah, in writing the book, creating the designs, everyone, even the secret book was much before this, yeah. So she's even thanking that team who worked for that movie, for that book, and she's also telling us that she's thanking the people for the scientific discoveries as well as the spiritual things. So this book is not just about something spiritual or a philosophy. No, it's also based on scientific facts. And she's thanking, again, just see this last line that we see here: deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them exactly the right time. And which is that right time? वो कब से लिखे हुए हैं, सेंचुरी से वो चीजें लिखी हुई हैं, बट वो राइट टाइम हमारे लिए आज है. माने जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए आज है, बट हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो हमारा मोमेंटस टाइम आ चुका था पहले, ठीक है. सो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट अब आया है जब हमारे पास we have the eyes to see and the ears to hear, right? So we are reading the book. Those who are new in this session, those who are new to this book, for them this is the life changing moment. And if you are doing the practices the way they are planned, आपको लगेगा हाँ ये लाइफ इस बुक के पहले कैसी थी और ये लाइफ इस बुक के बाद कैसी है. एंड आई एम श्योर जितने जन ये बुक पहले कर चुके हैं उनको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा. लाइक सीरियसली फील इसके पहले कैसे रहते थे, क्यों नहीं ऐसा होता था कि जो सोच रहे हैं वो हो जा रहा है, हाँ क्यों. लाइक यू विल जस्ट एक्सपीरियंस इट. एंड आफ्टर द रीडिंग टुडे, इफ पीपल हु हैव डन द practices earlier, if you share with the newcomers, it will be like wonderful. Okay, and I'm sure जो भी न्यू जन आए हैं वो ये सब सुन के ही आए हैं. Yeah. Yes. So we'll quickly go through the contents of this book. So today we are going to cover these 6 chapters. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. अभी हम लोग एक पोर्शन पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये हम लोग अभी ये 4 पढ़ेंगे. उसके बाद the 28-day book is like this. Day 1, count your blessings, magic rock, magic relationships, magical health, magic money, works like magic. तो आप देखिए relationship, health, money, ठीक है, ये इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो ये तीनों एरियाज, या magical way out of negativity, magic ingredient, again money magnet, magic dust everyone. तो ये इस बुक को अगर हम लोग देखें तो ये जो 4 हफ्ते की हमारी जर्नी है, ये 4 हफ्ते आप सोचो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं या और आगे जाते हैं, तो ये बुक ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है, कि शुरू में जैसे हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर पूरी बुक पढ़ते हैं, फिर उसके एग्जाम्स देते हैं. इस बुक को हम लोगों ने, रोंडा बायर्न ने ऐसे 4 फेजेस में सेग्रीगेट किया हुआ है. तो हम लोग इसके बारे में ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि शुरू में हमने कुछ प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद सेम चीजों को फिर से किया. अब देखिए अगेन मैजिकल पीपल भी आ गए और बीच बीच में ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी अपनी आती जाएंगी, विच विल इंक्रीज द मैग्नेटिक पावर, which will increase our force, which will attract magic to our lives. Okay, so make all your wishes come true. A magical day, magically heal your relationships, magic and miracles in health, the magic check, magical to-do list, magic footsteps, heart magic, magnificent outcomes before your very eyes, the magical air that you breathe, the magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings, the magic mirror, and remember the magic. तो ये पूरी जो प्रैक्टिसेस हैं ये 28 डेज में ये डिवाइड की हुई हैं, और लास्ट में हम लोग को बताना है कि आफ्टर द सेशन इज ओवर उसके बाद हम लोग कैसे अपने लाइफ में ये मैजिक को कंटिन्यू रखें. ओके, सो दिस इज हाउ द बुक इज. अच्छा, दिस इंग्लिश बुक हैज, उन्होंने जैसे बोला ना मैजिकल पिक्चर्स के लिए भी थैंक यू, तो एक्चुअल में ये सारी पिक्चर्स बहुत मैजिकल हैं, बट जो भी बोले हम इंग्लिश बुक में ये सारी पिक्चर्स ऐसी हाफ हाफ हो गई हैं. ओके, सो इवन इफ आई सी ऐसे 2 पेज में भी इसको हम देखते हैं तो इट डजंट कम आउट नाइस. सो लाइक generally what we do is, at least in my session, we see the pictures like this so that we are giving full credit to all the magical pictures that are there in this book. So
Swati, please read. What is your? Do you believe in magic? So अब आप जब इस बुक में आ रहे हैं और बुक का नाम भी यही है, द मैजिक, तो टेल मी, आप क्या एक्चुअल में मैजिक में बिलीव करते हैं? आप जो भी यहाँ पे आज आए हुए हैं, डू यू एक्चुअली बिलीव इन मैजिक? Yes. यस। अगर नहीं करते तो देखिए मेरे पीछे इतनी सारी हमने मैजिकल लाइट्स लगा के रखी हुई है, राइट? ठीक, ओके। सो नहीं, अगर आप जादू में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आप दवाई खाते हो, अगर आपको विश्वास होता है तो आप ठीक हो जाते हो, राइट? अगर आपको विश्वास है कि आपकी, आई थिंक मेजरली यहाँ पे फीमेल्स ही है ना, अगर आपको विश्वास है कि आपका हस्बैंड आपको प्यार करता है, राइट, तो वो करता है, वरना आपको अगर कोई डाउट है तो वो जो भी कर ले, जितने भी फ्लावर्स ले आए, जितने भी गिफ्ट्स ले आए, आपको नहीं विश्वास होगा तो आप नहीं उसको बिलीव करोगे, है ना? वाइस वर्सा फॉर द हस्बैंड्स आल्सो, लाइक, एंड फॉर द किड्स, अगर यहाँ पे किड्स हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो अगर आप कोई चीज में विश्वास करते हो तो ही ये है। तो अगर, लाइक, फर्स्ट चैप्टर इज आस्किंग अस, डू यू बिलीव इन मैजिक? या, सो इफ यू बिलीव इन मैजिक, ओके, इवन इफ यू डोंट, ओके, there's no pressure, आप न्यूट्रल में आके एक बार ये सेशन करके देखो, ठीक है? एंड देन आफ्टर द सेशन इज ओवर, देन आई विल आस्क यू अगेन, बुक विल नॉट आस्क, आई विल आस्क यू, नाउ डू यू बिलीव इन मैजिक? ठीक है? तो एकदम आप जैसे एकदम क्लीन स्लेट, फ्रेश माइंड से आप ये प्रैक्टिसेस एक बार करके देखो, ठीक है? एंड इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस इवन फॉर 7 days, 28 days की ये बुक है, अगर आपने 7 days भी ये जो प्रैक्टिस है किए, ठीक है, आपको लगेगा कि अरे इतना सारा मैजिक है, एकदम आपको ऐसे ही लगने वाला है। Okay, so now if you see this picture, जब हम लोग ड्राइव पे जाते हैं, ये आपने ऐसे, सॉरी, बहुत देखा होगा, ट्रीज ऐसे मिल रहे हैं, राइट? एंड डोंट यू थिंक इट लुक्स सो नाइस? जब भी ड्राइव में आपने तो देखा ही होगा ना, लाइक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या यू नो जब इंटरसिटी जा रहे होते हैं, तो ऐसे ट्रीज आर मीटिंग, एंड नाउ व्हेन वी आर रेफरिंग टू ऑल दीज आर नॉट फायरफ्लाइज, और कुड बी, ये जुगनू भी हो सकते हैं, बट हम लोग इस बुक में, बिकॉज दिस इज अ मैजिक बुक, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लाइक दिस इज द मैजिक डस्ट, ठीक है? अच्छा, अब दूर से आप देखिए, दिस इज लाइक कि यहाँ पे इतनी सारी मैजिक डस्ट है, इट्स लाइक यहाँ पे कुछ एक कार्निवल हो रहा है या कुछ हो रहा है, एंड वी वांट टू गो देयर। ऑफ कोर्स ये रास्ता वहीं जा रहा है, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, यू नो, या वॉकिंग जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस एंड वी सी दिस इज लॉट ऑफ मैजिकल थिंग ओवर हियर, ऐसा लग रहा है कुछ कार्निवल ही है। सो इफ यू फील दैट यस देयर इज मैजिक एंड देन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, दिस इज a life full of magic. Okay, yeah. Yes, Swati, please read. Those who don't believe it, the quote is hidden. What is hidden? No, I think, yeah. Those who don't believe in magic will never find it. No, now I can see it. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990, writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. Yeah. You were So full of Roald Dahl, excitement. yeah, just one second, Swati. Roald Dahl is like a children's writer, yeah, and he's telling us those who don't believe in magic will never find it. Okay, माने जिसको विश्वास ही नहीं होएगा उसको कभी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी अगेन ही इज ऑल्सो रीइटरेटिंग व्हाट रोंडा बाइन टोल्ड अस, अगर आपको मैजिक में विश्वास ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। बट हम लोग सब जन जब छोटे थे, हाँ, आप लोगों ने, हमको याद नहीं है, तो आपके घर में बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे या कजन्स होंगे, हाँ, उनके बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, दे आर सो एन्चेंटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर एक चींटी जा रही है, सो दे आर लुकिंग एट द एंट्स। हाँ, अगर आप अपना भी याद करें, हम लोग ने भी सब ने डिट्टो वैसे ही किया है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट ये सारी चीजें जो हैं ये हमेशा हम लोग को मैजिकल लगती थी या अमेजिंग लगती थी, माने डिफरेंट लगती थी, वी वुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, राइट? आप बटरफ्लाई उड़ती है तो क्या आप आज भी एक्चुअल में उसको यू नो मस्ती से देखते हो कि वाओ कितनी क्यूट है बटरफ्लाई, या डू यू स्टिल फील दैट? और इफ यू फाइंड अ स्ट्रेंज रॉक ऑन द सी बीच, आप उसको देख के अमेज्ड होते हो, या सीशेल्स देख के अभी भी अमेज्ड होते हो। तो आप सोचो, अब अगर हम 1% हो रहे हैं या चलो 10% हो रहे हैं, जब हम छोटे थे तो वो जो खुशी से हम लोग यू नो बटरफ्लाई देखे, वी वुड जंप अराउंड, फॉलो इट, ऐसे ही करते थे ना। छोटे बच्चे आजकल यही करते हैं, लाइक रियली टॉडलर्स, लाइक मे बी 5-6 years तक के बच्चे, वो उतने अमेजमेंट से रहते हैं। इफ देयर इज एन एंट, दे विल सी कि वो जा कहाँ रही है। if there's a huge queue, there's huge line of ants, they'll you know see कहाँ जा रही है, क्या है, you know। तो बिल्कुल
छोटे में हम लोग जब छोटे थे, हम लोग को हर चीज बहुत अमेजिंग, मैजिकल और अच्छी लगती थी, या हम लोग की लाइफ एकदम फुल ऑफ मैजिक होती थी. बट एज वी ग्रू, वी लॉस्ट दैट स्पार्क. कुछ हुआ, पेरेंट्स ने कुछ बोला, कुछ हमने लाइफ में देखा, लाइफ टुक ओवर बेसिकली. या हम लोग यही बोलते हैं लाइफ अब हो गई, अब लोग बचपन फिनिश हो गया हमारा, राइट? ऐसे हम लोग बात करने लगे. तो अब आप देखिए वो कैसे, वो मैजिक है, नहीं है, क्या था. लेट्स रीड. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. या तो आप देखिए उनको अभी भी लगता है. आई टेल यू, व्हेन आई ग्रू अप, मेरे घर में सांता क्लॉज नहीं आते थे टिल आई वाज वेरी स्मॉल. वो बहुत बाद में आना शुरू हुए, ठीक है? तो आप देखो क्या आपके लाइफ में आते थे? अगर आपके बचपन में नहीं आते होंगे, लेकिन आपके बच्चों के बचपन में आपने जरूर देखा होगा कि सांता क्लॉज आ रहे हैं, राइट? देखा है आपने? आपके नेफ्यू, नीस, उनके लाइफ में सांता क्लॉज देखे होंगे आपने आते हुए. हाँ, तो आप देखो वो कैसे होता था. कभी उस बच्चे को कभी नहीं लगा कि सबके घर में सांता क्लॉज पहुंच जाता है. कैसे उसने कभी सोचा? जब हम लोग बड़े होने लगे तब हमने ये समझा कि नहीं, कोई सांता क्लॉज नहीं होता है, राइट? या बड़े बच्चे छोटे बच्चे को बोल देते हैं कोई सांता क्लॉज नहीं होता है, बट फिर भी वो बच्चे उतने एक्साइटमेंट से ही या सांता क्लॉज के लिए रोज एक सॉक्स, रोज नहीं, लाइक क्रिसमस ईव पे वो सॉक्स हैंग करते ही हैं, या क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट एक्सपेक्ट करते ही हैं. जब आप छोटे थे, चलो सांता क्लॉज हमारे लाइफ में थोड़ा देर से आया, बट जब हमारा दांत टूटता था, सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली थॉट कि कोई उसको ले जाएगा और हमको उसके बदले में कुछ मिलेगा? टेल मी. आई डिड इट. ये तो किया ही हमने. टूथ फेरी का पता नहीं, बट हाँ, पिलो के नीचे रखने से कुछ तो सुबह मिलता था. हाँ, फिर उसको नहीं तो हाँ, गमले में उसको लगा दो पेड़ के नीचे ताकि अच्छा टूथ निकले. तो ये सब क्या था? टेल मी, वाज इट नॉट आवर बिलीफ इन मैजिक और समथिंग रियली नाइस? टेल मी. तो ये सब कहाँ चला गया? दैट वंडर, दैट ऑ, वो कहाँ चला गया? हम लोग जब क्लाउड्स को देखते थे, या तो यही सोचते थे ना कैसे वो क्लाउड्स का शेप बना हुआ है. या ट्रीज जब मूव करते थे तो हम लोगों ने ट्रीज के बीच में देखा, देखो उसके अंदर पक्का भूत बैठा हुआ है या परी बैठी हुई है. वी हैव डन ऑल दैट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप. आप अपने लाइफ में सोचो, क्या आपने एक्चुअल में ये सारी चीजें की हैं अपने सिस्टर्स, कजन्स, ब्रदर्स के संग में? हाँ, और जब किया है तो वो कहाँ धीरे धीरे वो सब फेड हो गया. वो जो मैजिक था कैसे हमारे लाइफ से चला गया. यस, प्लीज रीड. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. Yeah, so ये भी किया हुआ है. Like I'll tell you, those who are new, I'll share with you. I have a 3-year-old niece. बहुत सबको अपने 30 बच्चे बहुत बनते हैं. Same with me. I am in love with my niece, and वो अक्सर हनुमान जी बनती है, ठीक है? She has a गदा also. एंड कभी हमको सीता बनना पड़ता है, या कभी हमको रावण बनना पड़ता है, या कभी राम जी बनना पड़ता है. एंड शी इज लाइक, यू नो, शी प्लेज द रोल ऑफ हनुमान जी विद फुल एंथुजियाज्म. ओके, उसको विश्वास ही होता है. शी विल जंप आल्सो लाइक दैट. एंड अभी हम लोग हनुमान जी पे आ गए. 1 साल पहले मोगली थे, मोगली, शेर खान, बगीरा, बलू ऐसे थे. फिर बीच में कृष्णा हो गए, ठीक है? एंड अब वो हनुमान जी पे आ गई है. अब वो धीरे धीरे कुछ शंकर जी की बातें सुन रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग को गणेश जी भी बनना पड़े. सो जो भी गेम बच्चे लोग खेलते हैं ना, वो कितने अच्छे से खेलते हैं. हम लोग ने भी वैसे ही खेला था ना. हमारी डॉल को हम लोग खाना खिलाते थे, हाँ, उसको तैयार करते थे. या आप GI जो खेलते होगे, या ही मैन खेलते होगे, आई डोंट नो अभी और क्या खेलते हैं बच्चे लोग. आई रिमेम्बर माय चाइल्डहुड टाइम्स, माय ब्रदर वुड प्ले विद GI जो एंड ही मैन, एंड वी वुड प्ले विद डॉल्स, यू नो. ऐसे ही था, एंड सब कुछ असली लगता था. तो हम लोग इतना लाइक इट सीम्ड रियल टू अस. तो वो सब कहाँ चला गया? एंड हम लोग को एक्चुअल में ही लगता था कि यस, दिस इज सो रियल. या जब हम बड़े हों, कभी नहीं सोचते थे कि क्या होना है, बस उसी समय उसी दुनिया में वैसे ही रहते थे. तो दैट टाइम लाइफ वाज एक्चुअली मैजिकल. एवरीथिंग वाज सो नाइस. हम लोग कुछ नहीं सोचते थे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, थोड़ी फाइटिंग हो जाती थी भाई से या कजन से, वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज सो अमेजिंग. यस, सो वेयर डिड दैट गेट लॉस्ट? Yes, Swati. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure.
and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. या तो जब आप छोटे बच्चों के संग खेलते हैं तो अगर हम वो सीता जी बन जाते हैं और हमको ऐसे बैठना पड़ता है, ठीक है, एंड आई हैव टू गिव हर समथिंग एंड आई कीप फॉरगेटिंग एक्चुअल में सीता जी क्या देती है, दिस इज बैंगल और अ चूड़ा मड़िया, आई फॉरगेट, ओके, तो नाउ शी टेल मी बैंगल, आई सेड ओके ठीक है बैंगल, आई एम नॉट श्योर बट फिर भी आई हैव टू गिव हर समथिंग, ओके। या जब वो कृष्ण बनती थी एंड ऐसे करके गोवर्धन अपने ऐसे फिंगर में उठा लेती थी, तो वी हैड टू बी ना अंडर हर, ओ कृष्णा ब्लेस अस, तो व्हाई डू यू नो play with that child? Why do you enact the same things that she is expecting? Why? To actually feel that magic back in her life. That is so joyous. अगर आपने अभी नहीं खेला है, you know, there were times and I would say, ओहो बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं फ्लाइट में, हाँ आगे बच्चा बैठ गया, पीछे बच्चा बैठ गया, तो रोना तो बाद में, but they non stop they would chat. And now with a niece in my house, now I understand that it is so joyous, it is so amazing to be that, you know, child like for that particular moment. It's so amazing to be with the, you know, be one with the child. So it's really nice. So agar aapke ghar mein bacche hain, just play with them, enjoy that magic again. Okay, so yes, please continue. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yeah, so now Rhonda Byrne is telling us that whatever disillusioned us while we grew up, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग अब भूल जाते हैं. अब हम लोग को ये देखना है कि जो छोटे में जो अपन मैजिक समझते थे, ये जो सारी चीजें मैजिकल हैं, वो एक्चुअल में है और उससे भी ज्यादा अच्छी है. वो क्यों अच्छी है? क्योंकि मैजिक तो वो है ना कि जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाए, राइट, दैट इज मैजिक ना. तो एक्चुअल में हम लोग को अब ये पता चल जाएगा इस बुक से कि जो हम चाहते हैं वो हमको कैसे मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो कार हो, लैपटॉप हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, आप प्रीति जिंटा बनना चाहते हो, यू नो, लाइक शिल्पा शेट्टी बनना चाहते हो, इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू बी, या आपका कोई ड्रीम जॉब है, या आप अपने कोई एक दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, आप कोई हॉलिडे पे जाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो अगर हो जाए तो दैट इज मैजिक ना, राइट. तो वो आपके लाइफ में हो जाएगा एंड तब आपको लगेगा कि कैसे हमने मैजिक में बिलीव करना बंद कर दिया था, ठीक है. एंड जब वो सब कुछ होने लगेगा और कैसे होएगा, दैट इज द टाइम आवर लाइफ विल बिकम जॉयस. या You may not see reindeer fly. This one, no. I am here to tell you the magic you once believed. No, may not. Sorry, you may not see. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Yeah, so now Rhonda, are you ready to experience the magic? It's okay, Swati. I think there is some network थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, lag. It's okay. So now Rhonda Byrne is telling us that जो भी हम चाहते हैं वो हमको बिल्कुल मिलेगा, एकदम हमारी आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक है. एंड वो कैसे आएगा हम लोग को ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि हाउ इट विल हैपन हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को जस्ट अलाउ करना है. नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, ठीक है. तो अगर आपको ये एक तो लाइन अपने सामने लिख लेनी है कॉपी में, तो ये एकदम रोज आपको ये सोच लेना है कि हम लोग को जस्ट अपना काम करते जाना है, ठीक है. जब आप ड्राइव करते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव, जब आप ड्राइव करते हो तो आप सोचते हो आपने ब्रेक दबाया, अब नीचे अंदर में क्या हो रहा है, डू यू थिंक अबाउट इट? नो. जब आप फोन चार्ज करते हो तो आप सोचते हो कि क्या है ये जो पिन इसमें लगा हुआ है, हमने स्विच ऑन किया है, कैसे चार्ज हो रहा है, क्यों चार्ज हो रहा है, नहीं ना. डू यू पुट योर माइंड टू इट?
नो, क्या जो कुक बना रही है खाना, आप कभी सोचते हो कि गैस में वो कैसे सिलेंडर कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी कैसी है? नो ना, वी आर जस्ट, अनलेस यू आर इनटू दिस टेक्नोलॉजी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी जस्ट एक्सेप्ट दीज थिंग्स। या ठीक वैसे ही आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मैजिक होगा लाइफ में। वी आर नॉट टू क्वेश्चन इट, हाउ इज इट हैपनिंग, ठीक है? वी डोंट हैव टू दैट, बिकॉज मैजिक इनविजिबल रियल में होता है, एंड वही तो इसकी अमेजमेंट पार्ट है, वही तो इसका जादू है ना, कि वो हो गया बस। अगर हम उसके लॉजिक में चले जाएंगे तो दूसरा मैजिक आने में तो टाइम लगेगा ना, या आएगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता। तो यू जस्ट हैव टू लेट द थिंग्स हैपन, व्हाट थिंग्स, द मैजिकल थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। हमको उसके लिए क्या करना है? वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू डूइंग द प्रैक्टिसेस द वे Rhonda Byrne has designed for us in the next 28 days. Yeah. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes. So ये देखिए, ये 2000 years पहले ये टेक्स्ट में लिखा हुआ था, वो हमको पता चला है, राइट? बट उसके पहले लोग डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन लिखा वो 2000 years पहले गया है। तो जो इतनी पुराने, इतने सदियों से एक चीज चली आ रही है, उसको अगर हम क्वेश्चन करने लगे, ठीक है, तब आप बताइए, तब उसमें हमारे लाइफ में मैजिक होगा कि नहीं? सो नेक्स्ट 28 days जस्ट टोटली बिलीव इन दिस बुक कि यस, मैजिक आपके लाइफ में होगा और आप ही लाओगे। कोई हम लोग यहाँ पे कोई, ठीक है, चैप्टर 1 है मैजिक वॉन्ड, बट वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बुक में जो प्रैक्टिसेस लिखी है बस वो करना है, और जैसा आपने उसमें पढ़ा, चेंजेस हमारे अंदर आएंगे और हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। A great mystery is revealed. Yeah, so here in this, if we see, this is like the exactly the cover of this magic book only. तो इस बुक में ये जो sacred text में कुछ लिखा हुआ है, and this again it is being held in the hand of someone. Just let me just see, just 1 second. Yeah, so it's in the hand of someone who's wearing these robes and cloaks. हाँ, तो आप देखो इसके अंदर से ये मैजिक निकल रहा है। वो क्या मैजिक है, क्या है, we are going to discover that. Yeah. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yeah, तो आप देखिए ये स्क्रिप्चर है जो इतने सालों से था और अब पता चल रहा है ये सीक्रेट है। हाँ, और आप इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? Whoever has will be given more, माने जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास अच्छी हेल्थ है, जिसके पास अच्छे रिलेशंस हैं, उसको और मिलेगा। और जिसके पास नहीं है, माने जिसके पास पैसे कम है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसके रिलेशनशिप्स खराब है, उसके पास से वो भी चला जाएगा। तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है बुक, ठीक है? सो लेट्स रीड इट। Is that what it's saying us? You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. Yeah, तो ये रिडल है। आपने देखा शुरू में ही जो अपन ने पढ़ा था, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, उसमें यही लिखा था कि दिस बुक इज फुल ऑफ रिडल्स, ठीक है? तो ये जो एक रिडल है, ये हमको सॉल्व करनी है या रॉन्डा बर्न ने हमारे लिए सॉल्व कर दी है? लेट्स सी। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. Yeah, so now let's read it again. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yeah, तो अब आप देखिए ये वर्ड ऐड होने से ये जो रिडल थी वो सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? Whoever has gratitude will be given more, और उसके पास अबंडेंस आएगा, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो उसके पास है वो चला जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि कौन सा एग्जांपल दें? ओके, ठीक है, लाइक आपको एक गिफ्ट मिला, ठीक है, आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने या जो भी आप सोचिए, आपको किसी जिसको आप चाहते हो, ठीक है, सपोज हस्बैंड ही ले लेते हैं, आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट दिया, या आपके स्पाउस ने, सॉरी दिस इज अ बेटर थिंग, या आपके स्पाउस ने आपको एक गिफ्ट दिया,
ठीक है, आपने कुछ नहीं बोला, उसको ऐसे ही रख लिया और एक नॉर्मल सा बस रख लिया उसको, तो आपने क्या किया? वर यू थैंकफुल? नहीं। तो दोबारा आपका स्पाउस आपके लिए कुछ लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, राइट? या थोड़ा बहुत छोटा गिफ्ट ले आएगा मे बी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, फिर क्या होगा? गिफ्ट बंद हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मेरा हस्बैंड तो मेरे को कोई गिफ्ट नहीं देता, मेरी वाइफ तो मेरे को कोई गिफ्ट नहीं देती है, फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। ठीक है, तो अभी हम लोग तो सिर्फ गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और भी इसके बारे में और भी बात करेंगे कि क्या क्या उससे ले लिया जाएगा। सेम चीज, अगर आपको गिफ्ट मिला एंड यू से वाओ आई एम सो लकी, यू गॉट सच अ वंडरफुल गिफ्ट, यही मेरा मन था इतने दिन से, ये वाली चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है। अगर आपने ग्रैटिट्यूड शो किया, अगर आप थैंकफुल हुए, ठीक है, तो क्या होगा? आपका रिएक्शन देख के आपको दोबारा भी गिफ्ट मिलेंगे, आप और ज्यादा रिएक्शन करोगे तो आपको और चीजें मिलती जाएंगी। ये अभी हमने बहुत एक तो सिंपल सा एक तो बताया है, बट व्हाट इज दिस ग्रैटिट्यूड? जस्ट एक थैंक यू बोलना, इज दैट ग्रैटिट्यूड? या आपको फीलिंग से बोलना है, इज दैट ग्रेटिट्यूड? या जस्ट आपने मन मन में थैंक यू बोल दिया और बाहर से कुछ नहीं बोला, इज दैट ग्रेटिट्यूड? व्हाट इज इट? सो ये पूरी चीज कैसे हम लोग को समझनी है, दैट इज दिस वन वर्ड विच चेंजेस एवरीथिंग। दिस ग्रेटिट्यूड इज द वर्ड विच चेंजेस एवरीथिंग इन आवर लाइफ। Okay, and the book is going to tell us how we have to do this gratitude, how we have to get whatever we want in abundance. Yes. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. या तो यही है, जब अपन ग्रेटफुल होते हैं तब जो भी हमारे पास है वो और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुरान पढ़ें या जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ें, सब में यही लिखा हुआ है। ओके, तो स्वाति जस्ट प्लीज रीड द नेक्स्ट थिंग। ओके, From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion. Yes, I'll stop. No, please read. I want you. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yeah, तो चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, सब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दे आर डिस्क्राइबिंग अ फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस एंड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो इट इज नॉट समथिंग कि हमारे को हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा है कि हमको खाली पोलाइट होने के लिए थैंक यू बोलना है। नहीं, ये नहीं है। ये कह रहे हैं ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स है ये। ठीक है, एंड लॉ ऑफ साइंस ऑल्सो, कि अगर हम लोग ग्रेटफुल होंगे तभी हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा, अदरवाइज जो है वो हमसे ले लिया जाएगा। ओके, या It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. या तो अब आप देखोगे कि ऐसा क्या है ये, ऐसा कि माने लाइक व्हाट इज दिस लॉ। अब बोलोगे जो हमको चाहिए, जो हमारे लाइफ में अच्छा हो, उसमें भी लॉ वर्क करता है, एकदम वर्क करता है। जैसे ये न्यूटन का जो लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, वो सबके लिए वर्क करता है। ठीक है, चाहे आप जैसे भी साइज के हो, जितने भी रिच हो, जितने भी पुअर हो, सबके लिए ये सेम लॉ अप्लाई करता है। वो क्यों करता है? बिकॉज इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि यस सब हर जन यहाँ पे एनर्जी है। ओके, एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ एटम टू द बिगेस्ट ऑफ एलिफेंट, व्हेल, जितना भी बड़ा आप सोच सकते हो, वो सब चीज इज जस्ट अ बंडल ऑफ एनर्जी। कैसे आप बोलोगे एनर्जी कैसे? यस, एटम, सेल, मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे करते आप देखोगे
ये पूरा एनर्जी है इसका। और आपको दिखाते हैं, बताते हैं, वी हैव सीन इन मूवीज ना, आजकल तो बहुत सारे मूवीज में होता है कि जब नाइट टाइम में लोग वॉर पे जाते हैं, वो लोग ऐसा वाला कैमरा लगाते हैं ना, थर्मल सेंसर्स, तो उसमें वो क्या कैच करता है कि एनर्जी कैच करता है, राइट। उसमें जो भी लिविंग है उसकी वो एनर्जी कैच करके पता चल जाता है कि वहां पे कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हर चीज एनर्जी है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लिविंग क्रीचर की बात कर रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट द सेल्स ऑफ एवरी लिविंग क्रीचर आर हेल्ड टुगेदर। और इवन जो नॉन लिविंग चीजें होती, दे आर ऑल्सो बंडल ऑफ एनर्जी, बट वो डिफरेंट टाइप का एनर्जी है। तो हर चीज जिसमें एनर्जी है वो उस वाली चीज को अट्रैक्ट करती है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जैसी होंगी, हमारे लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है, राइट, तो उसमें पूरा और अच्छे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वी विल रीड मोर अबाउट इट एज द सेशन कंटिन्यूज। या सो जैसा अपन सोचते हैं, जैसा अपन चाहते हैं, हमारे लाइफ में वही आता है। व्हाई? बिकॉज एनर्जी अट्रैक्ट्स द सेम काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम, आप देखे होंगे आपके स्कूल में, जैसे आपका नेचर जैसा था, आपके लाइफ में मैक्सिमम लोग उसी टाइप के ही आते हैं। आपकी फ्रेंड्स वैसी टाइप की बनती हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसके जनरली ग्रुप वही होता है, जो सब लोग स्पोर्ट्स, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो एक टाइप का रहता है। जो पढ़ाकू लोग होते हैं उनका एक टाइप का ग्रुप होता है, और जो बदमाश बच्चे होते हैं उनका एक टाइप का ग्रुप होता है। अगर आप ऐसा ही सोचोगे तो भी उसमें ऐसा ही है, राइट। अगर आप कोई लाउंज में या डिस्को में जाओगे तो भी आप वहां देखोगे कि एक ग्रुप जो डांस कर रहा होता है, वो सारे डांस वाले लोग एक तरफ जा रहे होते हैं, खाली अपना मस्ती डांस कर रहे होते हैं। जो ड्रिंक वाले लोग होते हैं वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जो थोड़े से सैड टाइप के होते हैं, मतलब वो लोग अपनी दुख की बातें कर रहे होते हैं, तो सारे वो लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, राइट। तो ये ऐसा ही होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप अपने लाइफ में देखो कि कैसा हम लोग जैसी एनर्जी, जैसे थॉट्स हम एमिट करते हैं, हमारे लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स रीड। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she he or she doesn't appreciate me, I don't get along with I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. Yeah. So why, if I am complaining, if I am talking negative, yeah, तो वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में और आती जाएंगी. Okay, so now let's read the other side. But if you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. या तो आप देखिए, ये जो पहले वाला चैप्टर पैराग्राफ था जिसमें कह रहे हैं माय चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम, माय लाइफ इज अ मेस, तो ये सब क्या हो रहे हैं? डेफिनेटली ये ग्रैटिट्यूड नहीं हो रहा है। और जो फर्स्ट हम लोगों ने इस चैप्टर का जो पैराग्राफ ही पढ़ा था, whoever does not have gratitude, whatever he or she has will be taken from him. तो जब हम लोग इस टाइप की बातें करेंगे, ये डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो हमारे लाइफ में मोर कंप्लेनिंग सिचुएशंस आने वाली हैं, ठीक है। मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। कैसी एक्सपीरियंसेस? जिससे हमारा वहां का अबंडेंस भी चला जाएगा। अब हम लोग अगर ग्रेटफुल हो रहे हैं, आई लव माई जॉब इज डेफिनेटली ग्रेटफुल, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आप सारी अच्छी बातें जब बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो क्या होगा? आपको और ज्यादा मिलेगा। तो जब आप सिंसियरली फील करोगे उस ग्रैटिट्यूड को, आपके लाइफ में और चीजें आती जाएंगी, ठीक है। वाई? बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलो, या आप बोलो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा। या इट वर्क्स इन द सेम वे एज अ मेटल। अब आज से आपको ये सोचना है कि आप एक मेटल हो, ठीक है। आप एक मेटल हो जिसको ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक बनाएगा, ठीक है। सो यू आर अ मेटल जिसको ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक बना रहा है, और आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में आएगा। तो आपको कैसे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, या स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैग्नेट बनाना है? जस्ट बाय यूजिंग ग्रैटिट्यूड। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील शो बोलोगे, जो भी लाइक यू नो, उतना ज्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आता जाएगा। यू विल मैग्नेटाइज द अबंडेंस टू यू। एंड व्हाई? दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ।
So let's read some more and then it will be clearer, I guess. Yeah. You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Yeah, तो ये सारी Newton's बातें, scientific सॉरी स्वाति, जस्ट वन सेकेंड बिफोर वी रीड अहेड, ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं, जो जैसा जो बीज डालोगे वही फल आएगा. हाँ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरे गाल में थप्पड़ आएगा ही, राइट. वी हैव, ये सब बातें भी हम लोग हमेशा से सुन रहे हैं. तो ये सब इसीलिए कि जैसा बीज हम बोएंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा, राइट. अगर जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए, राइट. हम लोगों ने ये सब छोटे में ये सब सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बट कभी उसको हम लोगों ने मुहावरे से ज्यादा, या मुहावरे और दूसरा क्या होता है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, उसके अलावा कभी नहीं सोचा उसके बारे में. हमेशा यही सोचा कि बस एग्जाम में लिखने की बातें हैं, बट ये एक्चुअल में लाइफ में होता है, राइट. अगर आपने हंसा, कोई गिरा, ये तो छोटे में हम लोगों ने बहुत किया हुआ है ना, कोई गिरता है तो सब लोग हंसने लगते हैं. ओनली 1 or 2 विल प्रॉब्ली गो एंड हेल्प, और उसमें भी हेल्प के पहले तो हंस ही लेते हैं. हाँ, तो अब आप उसके थोड़ी देर बाद या दूसरे टाइम ही पक्का ना पक्का वो खुद भी गिरता है जो हंस रहा होता है, ठीक है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज कोई और गिरा और आप हंसे, तो डेफिनेटली आप गिरोगे तो कोई हंसेगा ही पहले, बाद में आके हेल्प करेगा आपकी. ये भी हम लोगों ने देखा ना, किड्स आर अ लिटिल यू नो, थोड़े जितना मैजिक उनको दिखता है उतना वो लोग ऐसी नॉटीनेस भी करते ही है. तो ये जो अपन करते हैं वो हमारे लाइफ में वापस आता ही है घूम के. क्या पिक्चर्स है इसके ऊपर पूरी, राइट, कि उसने बच्चे ने माँ के संग अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो जब वो बड़ा होता है उसका बच्चा भी उसके संग अच्छे से बिहेव नहीं करता है. तो ये बिल्कुल ये ऐसे यही लॉ है. और ये किसने किया? आप देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया है. तो अब आप सोचो कि ये जस्ट सिर्फ बोली हुई बातें नहीं है, सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं. आपको दिखा होगा ना मेरा नाम, और ये या यस स्वाति, यस संगीता जी, हम लोग को अभी सुनाई भी दिया. या यस स्वाति, प्लीज रीड. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. Yeah. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. या तो क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा कैसे ये एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, लाइक यू आर गिविंग समथिंग, या आपके लाइफ में उतने और सिचुएशंस ऐसे आएंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जब आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें आप और ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा. आप कब ग्रैटिट्यूड देते हो, कब आप खुश होते हो, कब आप थैंक यू बोलते हो? जब आपके मन का कुछ आपको अच्छा मिल रहा हो, या जो आपको अच्छा लगता है आपको वो मिल रहा है, तभी तो आप थैंक यू बोलोगे, तभी तो आप अप्रिशिएटिव होगे. जनरल अगर हम लोग बात करें, नॉट कि आधा ग्लास खाली भरे वाले में ग्रैटिट्यूड नहीं, जनरल में अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तब आप थैंक यू बोलोगे. एंड जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलोगे, एज पर न्यूटन, जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलोगे आपको वैसी ही और सिचुएशंस मिलेंगी. लाइक आप थैंक यू दे रहे हो, आपको सिचुएशंस मिल रही हैं और थैंक यू बोलने की, ठीक है. तो और ज्यादा आपके लाइफ में ऐसे मौके आते जाएंगे जहां पे आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक लॉ दैट वी आर गोइंग टू follow in this whole book. What you give is what you receive. You are giving thank you and you are getting situations where you are more thankful. ओके, सो यही हमारे पूरे उसमें. और जितना ज्यादा एंड मोर सिंसियरली, माने जितने ज्यादा फीलिंग से आप थैंक यू बोलोगे, माने आपको वो गिफ्ट मिला और आपने उसको हग कर लिया और आपने बोला वाओ इतना अमेजिंग गिफ्ट है, उतना फीलिंग से बोलोगे, नेक्स्ट टाइम और बड़ा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है. अगर आपने जितना कम फीलिंग से बोला, आपने बोला हाँ ठीक है थैंक यू और चुपचाप उसको रख लिया, तो आपको मे बी ऐसे मत फेंको ना. Okay, so this is what Newton is telling us and what Rhonda Byrne is telling us. The more we give, the more situations we will get where we are, you know, being grateful. Yeah. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next.
The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. या तो अब आप देखिए, चाहे मोहम्मद बोल रहे हो, चाहे बुद्धा बोल रहे हो, या लाउत्जू, कृष्णा, किंग डेविड, जीसस, जो भी बोल रहे हैं वो सब सिर्फ थैंक यू के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, कि जब आप जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलोगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, हर रिलीजन में यही बोला जा रहा है। एंड नॉट ओनली ऑल दीज रिलीजन्स, इवन द नेटिव्स, ओके, वो लोग भी यही कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा उनके ग्रेटिट्यूड उनके प्रैक्टिस में ही है। जितने ज्यादा नेटिव, इंडिजिनस, ये जो ट्राइब्स होते हैं, वो लोग सब लोग हर चीज में धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जो भी आप बोलो वो लोग ग्रेटिट्यूड ही शो कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स रीड दिस कोट, स्वाति। व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life, and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. yeah, Tecumseh, 1768 to 1813. Yeah, Shawnee Native American leader. या सो नाउ ही इज ऑल्सो टेलिंग अस कि आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, अगर आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो, मतलब कि आप में ही फॉल्ट लाई करती है। इसके बारे में हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग एंड लेट्स सी हु एल्स, not just these religious people, not just the religion, but there are so many more who talk about gratitude. Yeah. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Hume, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein. आप बड़ी, आप सोचो, नॉट आप बोलो नहीं मेरे को तो कोई भी रिलीजन में विश्वास नहीं, मेरे को तो भगवान में ही विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। आप हिस्ट्री के ये फेमस लोगों को देखो, दे आर ऑल्सो ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड। एंड ये हम लोग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अगर आपको और ज्यादा विश्वास नहीं है रोंडा बर्न पे, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें भी लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड। हम लोग इन सबके कोट्स पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जो भी हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे, यू विल सी दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड दैट इज व्हाट इज making them achieve these heights. Yeah. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Yeah. Is it any wonder that so many of life's mystery were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. Yeah, तो अगर हम लोग आइंस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे तो he is thanking about, आप देखिए ना, people much before him, ठीक है, and he is thanking 100 times a day. तो ये प्रैक्टिस भी इस बुक में इंक्लूडेड है कि क्या करना है हम लोग को, कैसे करना है। आइंस्टाइन अगर नहीं बनना है तो हमारे लाइफ में हम लोग ऐसी क्या डिस्कवरीज कर सकते हैं हमारे बारे में, जो हमको चाहिए उसके बारे में, उससे ग्रेटिट्यूड से हमारे लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस आने वाली है। सो आइंस्टाइन ने भी ऐसा किया है। नाउ लेट्स रीड अबाउट न्यूटन। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. तो आप देखिए न्यूटन ने भी यही किया, जो उनके पहले जिंदा थे उनको उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया अपना, एंड ही इज आल्सो सो फेमस। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, तो अब आप ये तो समझोगे ये बुक हमको ग्रेटिट्यूड की ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाली है जिसने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उनको आज तक हम लोग जानते हैं, उनकी डिस्कवरीज को, उनकी रिसर्चेस को अभी तक जानते हैं, राइट। तो वो लोग ऐसा क्या करते थे जो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितने सारे साइंटिस्ट थे, कितने सारे वहां पे डिस्कवरर्स थे, बट ये लोग क्यों ऐसे ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्यों इनको हम लोग अभी तक जानते हैं। क्या The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and more were aware of its inherent power.
Yet still gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. या तो जैसे आप देखिए इन सब लोगों को पता था एंड मोस्ट वर अवेयर ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर, बट फिर भी इतने सारे लोग क्यों नहीं इतने फेमस हो गए, क्यों नहीं हो गए? क्यों सब लोग तेंदुलकर नहीं बन गए, या क्यों सब लोग लता मंगेशकर नहीं बन गए? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आप लोगों ने बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, बट वो लोग उसके संग में क्या करते हैं? उसके संग में ग्रैटिट्यूड भी करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी और अमेजिंग चीजें उसके अंदर होंगी। Yeah, so let's read about Rhonda Byrne, how she discovered what her life was and how she changed it with gratitude. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. या तो हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग छोटे बच्चों को जब सॉरी, थैंक यू, प्लीज बोलना सिखाते हैं, तो हम लोग यही तो बोलते हैं आउट ऑफ बेसिक एटिकेट्स, कर्टसी। सिर्फ हम लोग इसलिए छोटे में बोलते थे और अभी भी इसीलिए बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? नॉट नाउ, दोज हु आर न्यू। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सुधर गए हैं, है ना? तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करते थे। सेम वे रॉन्डा बर्न भी ऐसी थी। वो भी जस्ट जनरल थैंक यू, कुछ किसी से गिफ्ट मिला, किसी ने गेट खोला या किसी ने कुछ दे दिया, बस उसलिए बोलिया। बट उस समय क्या हम लोग एक्चुअली मीन करते थे? वो रॉन्डा बर्न हमको यही बता रही हैं। शी वाज नॉट, द ट्रूथ वाज मे बी शी वाज नॉट सच अ ग्रेटफुल पर्सन एट दैट टाइम। वो जस्ट बेसिक एटिकेट्स के लिए थैंक यू बोलती थी, जैसा कि हम मोस्टली करते आ रहे थे अभी तक। या एंड फिर भी उनकी लाइफ चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? शी इज शेयरिंग इट विद अस। यस। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. Yeah. I'll continue. Yes. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. Yeah, अब आप देखिए रॉन्डा बर्न की लाइफ नॉर्मल चैलेंजिंग लाइफ जैसी होती है, बिल्कुल उसी टाइप के, कि शी वाज इन डेट और वो बढ़ता चला जा रहा था। उनकी हेल्थ भी ओके ओके टाइप्स थी, ठीक है। रिलेशनशिप्स आल्सो फेयर टू डिजास्टर्स में स्विंग करते रहते थे पेंडुलम की तरह। एंड शी नेवर हैड इनफ टाइम। माने आप देखो आपके लाइफ में इसमें से कुछ ना कुछ तो एक आध चीजें मिलती जुलती लगी रही होंगी। या तो आपके पास टाइम कम होगा, या आपके रिलेशनशिप्स कोई बहुत अच्छे होंगे या बहुत खराब होंगे, या आपके फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज होंगे, आपको चैलेंजेस होंगे, या हेल्थ की कोई इश्यू होगी, या आप वेकेशन में जाना चाहते हो नहीं जा पा रहे होगे, ठीक है। तो इस टाइप की भी उनकी भी इसी टाइप की लाइफ थी। एंड हाउ शी चेंज्ड इट, व्हाट शी डिड, शी इज गोइंग टू शेयर विद अस। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. Yeah, so what she For did the was, first time in one second, she was practicing gratitude each day. और वो रोज रोज जैसे कर रही थी, उनकी लाइफ चेंज हो गई। और वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करती गई, उनकी लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स आते गए और वो मैजिकल हो गई उनकी लाइफ, ठीक है। और यही वो चीज हमको हमारे लाइफ में बताने जा रही है। या For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted.
Problems in my relationship, work, and health disappeared, and Hmm. facing daily obstacles, my day became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months Hmm. than I had in all the previous years. Hmm. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. या तो आप देखिए उनके हर एरिया में ड्रामेटिकल रिजल्ट्स उनको दिखाई दिए, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए एक एक एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, एंड शी वाज डेट फ्री। पहले उनका डेट जो बढ़ता के बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है, वो कम नहीं हो, वो गायब भी हो गया। एंड हर चीज वील रीड इट लेटर ऑन आल्सो इन द बुक कि उनको जो भी उनके सपने थे, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट जो चीजें उनको चाहिए थी, जो हम लोग सबको भी चाहिए थी, वो भी उनको सब मिल गई, ठीक है। एंड और वो खुश रहने लगी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ग्रेटिट्यूड चेंज्ड हर। तो हम लोग जो चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा खुद में चेंज करेंगे जिससे हमारी लाइफ चेंज होगी, वो है ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड वो कैसे डेली अपने लाइफ में हमको इनकॉर्पोरेट करना है, छोटी छोटी चीजों से, बड़ी बड़ी चीजों से कैसे करना है, ये पूरी बुक हमको यही बताने वाली है। क्या? यस। Bring the magic into your life. So here if we see in this picture again, we will see sorry, not just one second. Yeah, so here if we see, आप देखो ये नॉर्मल आप घर के रूटीन में अगर हम देखें तो ये किचन है, ठीक है, एंड किचन में भी आप कुछ तो लिख रही हैं या पढ़ रही हैं, विंडो से मैजिक डस्ट आ रही है, यहाँ पे वाटर है, फूड भी है, सनलाइट भी है, एंड मैजिक डस्ट आ रही है। सो वी आर लेटिंग इट एंटर आवर लाइफ थ्रू द विंडो, थ्रू द सनलाइट। कैसे आप उसको लेके आ रहे हो अपने लाइफ में, कैसे उसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे, अब हम लोग ये देखेंगे। सो इट इज सो सिंपल, इट्स लाइक हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट इट। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received Should I stop? Yes, continue. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. या तो आप देखिए, आप रोंडा बर्न को ये इतने सारे लेटर्स मिले, हाँ, ये कैसे उनको मिले, उन्होंने जब सीक्रेट मूवी बनाई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, उनकी वेबसाइट थी, बहुत सारे लोगों ने उनको उस सीक्रेट बुक से प्रैक्टिस, जो भी उनको समझ में आया, जो भी बुक में लिखा हुआ था, वो प्रैक्टिस की, और उनके लाइफ में जो जो चेंजेस आए उनको भेजे, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि लोगों ने क्या किया, कैसे अपने लाइफ में मैजिक लाए, तब उसके बाद उन्होंने एक और बुक लिखी, फिर उन्होंने ये मैजिक बुक लिखी, ठीक है। तो उनको लोगों के फीडबैक से, प्लस जो उन्होंने शेयर किया था या उनको जो सीक्रेट मिली, उसके बेसिस पे उन्होंने ये वाली बुक बनाई है, ठीक है। एंड उसका मोस्ट सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड। हम लोगों ने सीक्रेट बुक में भी, मूवी में भी देखा था, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, और तीसरा वाला क्या था, एक तो देयर वाज वन मोर, three things that were shared in that movie. Gratitude and visualization tha, I think they were only two. तो gratitude is the easiest and simplest. उसको करने से सबके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप फाइनेंशियल्स में देखो, रिलेशनशिप्स में देखो, हेल्थ में देखो, हर एरिया में ग्रैटिट्यूड से रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे आ रहे हैं, हेल्थ में कैसे आएगा, फिनेंसेस में कैसे आएगा, तो यही प्रैक्टिस हमको पूरे बुक में सिखाई गई कि एक एक एरिया में हम लोग कैसे मिरेकल्स कर सकते हैं। क्या? Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success,
and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. या तो आप देखिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वो सब हमारे लाइफ में हो जाएगा एंड इट विल एक्चुअली टर्न आवर लाइफ इनटू गोल्ड. अब जब ये गोल्ड बोल रहे हैं तो ये नहीं कि हम वो सोने की वो डॉल बन जाएंगे, नहीं, वो सोने के वो बोत बन जाएंगे, नहीं. इट विल मेक आवर लाइफ इनटू व्हिचएवर व्हाटएवर वे वी वांट. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड इज गोइंग टू डू टू अस. या As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. या तो आप देखिए मेरे संग तो ऐसा होता था, लाइक यू नो अर्लियर बिफोर दिस बुक आई वुड गेट अप इन द मॉर्निंग, वही ऑफिस जाना है, वही काम करना है, वही खाना करना है, तैयार होके जाना है. दैट इज हाउ आई वुड नो एट टाइम्स गेट अप. हाँ, फिर से एक्सरसाइज करो, ठीक है, यू नो वही क्लाइंट, वही प्रोजेक्ट, ऐसा फीलिंग आती थी. और एक्चुअल में आपको भी लगता होगा कि वही बच्चे, वही स्कूल, वही पढ़ाई, वही जॉब, ऐसा आता होगा आपके मन में, वही खाना. हाँ, बिल्कुल ऐसा आता होगा. यस कान्वी, यू आर सेइंग दिस, कूल, बिल्कुल ऐसे ही आता था, मेरे भी मन में ऐसे ही आता था. तो नाउ when I started doing this book each day, when I get up I'm like so charged up, so fresh and energetic. ठीक है, ऐसे भी एनर्जेटिक रहते थे, बट देर आर डेज यू नो व्हेन नहीं मन हो रहा है कुछ करने का, चैलेंजेस आएंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लाइक आई बाउंस बैक. कुछ भी होता है, हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं कर रहे हैं. हेल्थ चैलेंजेस अगर मेरे नहीं आ रहे तो मे बी किसी और के आ रहे हैं. तो उन सब सिचुएशंस में भी हमको ग्रैटिट्यूड कैसे उससे बाहर निकालता है या बहुत जल्दी उससे ऊपर ले आता है, ये सब हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं. ईच डे बिकम्स मैजिकल. हर दिन कुछ ना कुछ एक आप ऐसा लगेगा कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, टाइम ही टाइम है, माने कितना कम टाइम है, ऐसा भी लगता है, इतनी सारी चीजें करनी है. तो बिल्कुल लाइफ में एकदम ऐसे लगे, वो अच्छा वाला कि इतनी सारी चीजें करनी है, वैसा वाला नहीं कि ओ गॉड इतनी सारी चीजें करनी है, वैसा वाला नहीं आएगा. यू विल बी लाइक फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. एकदम ऐसे वाले चेंजेस आने वाले हैं वंस वी स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस. ओके, एंड एक्चुअली यू विल फील हैप्पियर देन यू हैव एवर फेल्ट बिफोर. ये तो आप जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दे विल डेफिनेटली वाउच फॉर इट, है ना. आप जो जो कर रहे हो आप बताओ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यस लाइफ इज सो मच अमेजिंग नाउ? एकदम ऐसा लगता है ना? यस, सो या Yup, yup, yup. Yep. Yes, good. Yes, I like it, Ramadi. Yeah. Yes. So let's see. Is your life magical? Yeah. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. या आप ये अपने लाइफ में आप रिफ्लेक्ट करो. ये आज का पहला असाइनमेंट, ये असाइनमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं. कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, एंड यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ द मेजर एरियाज इन योर लाइफ. ये वाले जो एरियाज हैं आप बुक में अंडरलाइन कर लेना, हम भी उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे. आपको ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है. ऐसे जैसे देखते हैं ना, लाइक कि आपके इतने सारे रिलेशनशिप्स होंगे, कोई एक बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसका मतलब आप उसमें ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. और एक, चलो एक ही बोलते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं जो ठीक ठाक नहीं होंगे. एक होंगे जो बहुत ही ऐसा लगेगा वो गॉड, इससे तो मेरा 36 का आंकड़ा चलता रहता है अदर टाइम, ठीक है. तो इसका मतलब आप उसमें वहां पे ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो. तो नाउ यू मेक अ लिस्ट कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आपका एरिया अच्छा हो. जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक सब्जेक्ट सबको बहुत अच्छा लगता था, एक सब्जेक्ट सबको गंदा लगता था. जनरली वो मैथ्स होता था पहले, है ना.
और एक सब्जेक्ट सबको, या हिस्ट्री सिविक्स भी हो सकता था, तो वो ऐसा क्यों होता था? आप उसमें ज्यादा ध्यान देते थे, आप उसमें ज्यादा पढ़ाई करते थे, या मीन आप उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, इसलिए आपके मार्क्स उसमें अच्छे आते थे। और जिसमें आप नहीं ध्यान देते थे, जिसमें आप कम टाइम देते थे, उसमें आपके मार्क्स गंदे आते थे। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है। जिसमें आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसको आप ज्यादा प्यार करें, आप उस रिलेशनशिप को भी देखो। जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता था, आप उसको बहुत ध्यान लगाते थे, वो स्पेशली रहता था। जब बेस्ट फ्रेंड थी आपकी, तो आप उसके संग ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उसको ज्यादा कॉल करते थे, आपका रिलेशनशिप उसके संग अच्छा रहता था। तो वैसे ही जिस एरिया में हम लोग ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस भी जोन में, ठीक है, जनरली उसमें हमारे ग्रेटिट्यूड ज्यादा होते हैं, और उसी में हमको अबंडेंस दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं, आप अपने 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 आप हेल्थ में ही देख लो। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ योर हेयर, आप उसका बहुत ध्यान करोगे, उसको टाइम से शैम्पू करोगे, टाइम से हेयर ऑयल करोगे, पैक लगाओगे, पार्लर भी जाओगे तो उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, कोम करोगे, दिन भर उसको सेट करोगे, तो उसका रिजल्ट उसमें दिखाई देता है। सपोज आपको लगता है कि नहीं आप उसका ध्यान दे रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही होता है ना। तो जिस एरिया में आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, जिस एरिया में आप अप्रिसिएशन शो कर रहे हो, उस एरिया में ही आपको abundance दिखती है। तो now Rhonda Byrne is telling us, if you reflect in your areas, just take a look at in the areas. आप सिर्फ लुक मत करो, आप लिख लो उसको, ठीक है, कि जिस एरिया में आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट चाहिए, जनरली आपने उसमें कंप्लेंट्स की हुई होंगी, ठीक है, और जिसमें अबंडेंस है, जिसमें अच्छा अच्छा सब कुछ है, उसमें आपने 100% ग्रेटिट्यूड किया हुआ है। ओके, सो इट्स अ सिंपल फैक्ट। यस स्वाति, प्लीज कंटिन्यू। It's a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. Yeah. So basically, if we are giving gratitude, that is the time when we'll receive abundance. Okay. So if we are not giving gratitude, वो हमारे life में scarce हो जाएगा. Yeah. The bottom line of ungratefulness is that when you are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. या तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड है, आप सब समझ गए। कितने बार आपने अपने स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट्स को, बेस्ट फ्रेंड को बोला ही होगा, यू टेक मी फॉर ग्रांटेड, बोला होगा ना, तो कैसी फीलिंग होती है? आपको उस समय अप्रिशिएट किया गया होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है, या आपके बारे में कंप्लेंट या निग्लेक्ट कर दिया गया होता है, तब आपको लगता है ना। तो whenever we are taking things for granted, that is the time we are getting, वो हमारे लाइफ से कम होने लगेगा, ठीक है। दैट इज द टाइम इट विल बिकम स्कैर्स फ्रॉम आवर लाइफ। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अबंडेंस? स्कैसिटी। इफ यू नोटिस इन दिस बुक, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड बोल रही है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड या ग्रैटिट्यूड, वो कभी नहीं बोल रही है कंप्लेंट्स। हुएवर डज नॉट हैव ग्रैटिट्यूड, या वो ये नहीं कह रही हुएवर इज कंप्लेनिंग। तो हम लोग को ये देखना है कि देयर इज अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। न्यूट्रल भी अगर है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड माने क्या हुआ, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, अगर आप न्यूट्रल भी हो तो भी उसको लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड बोला जाएगा, ठीक है। तो अगेन सेम थिंग, टेकन फॉर ग्रांटेड इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, लैक ऑफ अप्रिसिएशन। तो जिन चीजों को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हमारे लाइफ से वो भी कम होती जाती है। यस, या Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Yes, so this new way of life is what will make your life magical, is what will attract more and more things that you desire, that you dream of into your life. Okay, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छा हेल्थ हो, माने कुछ भी। लाइक अगर आपके भाई से ही रोज कटपट चलती रहती है, भाई नहीं, सपोज स्पाउस से चलती रहती है, बच्चे से चलती रहती है, लाइक कुछ भी, मदर इन लॉ से, बॉस से, स्टाफ से, तो उस एरिया में आपको ग्रैटिट्यूड करना है, और वो आपका अगर वे ऑफ लाइफ बन जाएगा, तो वो एक एक एरिया आपका अमेजिंग होता चला जाएगा। ओके, सो जस्ट वन सेकेंड ना, ऐसे तो आज बहुत इंपॉर्टेंट था।
Are you okay if we continue till 10:30, everyone? Is it okay? Yes. Okay, I'll take it as a yes. Okay, thank you. Yes, yes, Swati. The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ibn Khalauddin al-Muqaddimah, 1332 to 1406, scholar and statesman. Yeah, तो अब आप देखिए knowledge is a treasure. मतलब जब जैसे देखिए like I told in the beginning only, I love working out, I love doing lots of fitness things. Yeah, तो knowledge हम सबको ही होती है, हर चीज की. आप किसी को भी पूछो, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग ज्ञान बहुत सारा बांट सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, हाँ, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, सिंगिंग हो, मूवी डायरेक्शन हो, हर चीज के बारे में हम लोग को बहुत सारी नॉलेज है. बट क्या है, क्या जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या वो कुछ काम का है? ठीक है, अगर हम अभी बोलें सबको, सब लोग बता सकते हैं कि किसको लास्ट बॉल में बॉलिंग करनी चाहिए थी. सबको. जब मैच होता है ना, अगर इंडिया हार गई, लास्ट बॉल तो देना ही नहीं चाहिए था इसको, लास्ट ओवर में इसको बैटिंग क्यों दे दी, या लास्ट ओवर में इसको बॉलिंग का जनरली ये रहता है ना, इसको बॉलिंग क्यों दी थी, सबको आइडिया आता है. बट एक्चुअल में जब आपको वहां पे फिजिकली जाके करना होगा, तब पता चलता है कि हाँ क्या है, ये क्यों उसने ऐसे किया, क्या किया. सेम वे अगर हम उसके बारे में बात करें, एक्सरसाइज के बारे में, वेट लॉस के बारे में, सबको पूरी नॉलेज है. ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो किस काम का है? Tell me, कोई काम का नहीं. Like I will tell you one of my favorite examples. I have full knowledge of how to drive, right? But I don't know how to drive. तो नॉलेज वो मेरी किस काम की है? जब तक हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया. मेरे पास नीचे कार खड़ी हुई है, मेरा ड्राइवर गया हुआ है गाँव अभी लॉकडाउन में, ठीक है, बट आई कांट गो एनीवेयर. व्हाई? बिकॉज आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड. ओके, एंड ईच टाइम आई थिंक, क्योंकि एक्चुअली में ना वो मेरी ड्रीम नहीं है, आई डोंट वांट टू ड्राइव. ओके, इसीलिए वो मेरी ऐसी एक तो है, खाली नॉलेज है मेरे को. तो जब तक मेरे को सब पता है, गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक, हर बार अब की बार हम समझ लेंगे किसी से अच्छे से, सब पता था मेरे को, बट प्रैक्टिस नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है. ठीक है, जैसे ही आपको कोई पूछे वेट लॉस कैसे करना है, हम लोग सब बता सकते हैं, खाओ कम, एक्सरसाइज ज्यादा करो, सही खाओ. अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, हाँ, वीगन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब पता है. लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या वो रिजल्ट आएगा उसका? कुछ भी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा. तो सेम वे, इफ वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हाँ, हमारी लाइफ मैजिकल नहीं होने वाली. देन वी कैन नॉट से एक सेशन किया था, 20 दिन में पता चल गया उसमें से कुछ नहीं होने वाला है. 20 दिन सुना था मैंने उसको, जो रोज कोई 30 डेज भी सुन लेगा, 30 डेज भी सुन लिया था मैंने, उतने दिन ठीक ठीक अच्छा लगा, बट फिर तो कुछ नहीं हुआ. क्या मैजिक, क्या ग्रेटिट्यूड? तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना शिद्दत से आप प्रैक्टिस करोगे, शिद्दत के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, तब उतना ही लाइफ हमारी मैजिकल होगी. Okay, so that is what knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Yeah. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. Yeah, so now हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी ना, कि आब्रा का डाबरा, राइट, खुल जा सिमसिम. ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये तो मैजिक वर्ड्स हैं, राइट. खुल जा सिमसिम से ही वो केव खुलती है, या और आब्रा का डाबरा बोलो, या जो भी है वो हैरी पॉटर के सारे स्पेल्स थे, वो क्या थे? वो जब तक आप नहीं बोलोगे, लाइफ में मैजिक नहीं आएगा. ठीक है, चाहे वो गेट खोलना हो, या लाइफ में कुछ मैजिकल करना हो, या एज पर रॉन्डा बर्न, फ्रॉम wherever you are to what you want in your dreams, उस सब को पाने का एक ही ये मैजिक वर्ड है, which is that thank you. She is telling us deliberately say those words. माने हमारा मन नहीं है, जैसे बच्चों को छोटे में सॉरी बोलना बड़ा चैलेंजिंग होता है ना, बच्चों को सॉरी बुलवाना, हाँ, वैसे ही थैंक यू हम लोग को, वो लोग का मन नहीं होता है, फिर भी उनके मुंह से सॉरी निकलना कितना एकदम चैलेंजिंग टास्क होता है. थैंक यू फिर भी निकल जाता है, प्लीज भी किसी तरह निकल आता है. तो वैसे ही हमको डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है. तो स्टार्टिंग हम लोग को ऐसे करनी है, डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. ठीक है, तो इस बुक का जो हम लोग एक चीज करेंगे, वो क्या है? एक थैंक यू हमको फोर्सफुली अपने आप को बोलना. नहीं याद आ रहा है, नहीं फीलिंग आ रही है, बट बोलना ही है. फेक इट टिल यू मेक इट, ये आपको एकदम सोच लेना है. ठीक है, कि नहीं मन में आ रहा है, आप बोलते जाओ, आएगा ही आएगा वो.
Okay, so let's read the magic formula. The magic formula. 1. Deliberately think and say the magic words thank you. Hmm. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Hmm. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. या तो पहले तो हमको डेलिबरेटली थिंक एंड से मैजिक वर्ड्स, माने पहले तो हमको बोलना है, फिर हम जितना ज्यादा बोलेंगे, जितने ज्यादा बार बोलेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। तो स्टार्टिंग क्या है, पहले तो आपको बोलना है, फिर जितना ज्यादा बार बोलते जाओगे आपके अंदर वो फीलिंग आती जाएगी। ठीक है, जैसे आई लव यू जब आपने फर्स्ट टाइम बोला होगा अपने स्पाउस को, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल, या आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला होगा, बिकॉज किसी ने बोल दिया तो आपने भी उसको बोल दिया, उस समय तो मे बी आपने फॉर्मेलिटी में बोल दिया। तो जितना ज्यादा बार, फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही बोला होगा ना, राइट, एकदम जेन्युइनली तो नहीं बोला होगा। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट टाइम बोला, उसके बाद क्या, तो उसके बाद आप बोलते गए, जितने बार बोलते गए आपको लगा कि हाँ यस यस फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, फीलिंग्स जितनी ज्यादा आती जाएंगी उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर थैंक यू। प्लीज आप लोग आई लव यू या और कुछ मत बोलने लगना ऐसे, अभी सिर्फ थैंक यू पे ही बोलना है। ठीक है, ये नहीं कि बोलते जा रहे हैं तो आई लव यू वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, हो सकता आ जाए, आई डोंट नो, बट अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट थैंक यू। या Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. या सो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, है ना। आप अभी अगेन आई विल टेल दैट कि उस मूवी में, अच्छा दैट विल कम टू लेटर, कि जितना ज्यादा फीलिंग्स अपने, और ये भी तो बहुत है कि आपने हस्बैंड या वाइफ में या बच्चे में ये तो सुना ही होगा, आई लव यू या सॉरी, हाँ यू डोंट मीन इट, बट आप ऐसे ही बोल रहे हो। कितने बार अपने फ्रेंड्स को बोला होगा ना। हाँ, तो एक्चुअल में फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब आप फीलिंग के संग बोलोगे उतना ज्यादा ही उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपने फीलिंग से थैंक यू बोला है तो सामने वाले को पता चलता है, राइट। अगर आपने ऐसी फॉर्मेलिटी में थैंक यू बोला है तो भी जो आपको जानता है उसको पता चल जाता है। तो हम लोग नेचर से तो हम लोग ये नहीं छुपा सकते हमारी फीलिंग। तो जितनी ज्यादा फीलिंग से आप बोलोगे, आपके लाइफ में उतना ही इक्वेशन से आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, और जितना फीलिंग से बोलेंगे उतनी अच्छी हमारी लाइफ में मैजिक्स आएंगे और लाइफ अच्छी हो जाएगी। Yeah. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. या सो इट एक्चुअली इस बुक में जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी सिंपल और छोटी हैं कि हम लोग को कुछ अलग से उसके लिए टाइम नहीं निकालना है। तो बस हम लोग अपने उसमें उसको हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है और हमारे लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट होते चले जाएंगे। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन लिटिल, माने अगर आपने थोड़ी चीनी डाली है तो चाय थोड़ी मीठी होएगी ना। अगर आपको अच्छी चाय चाहिए है या रसगुल्ला चाहिए है या केक चाहिए है तो आपको उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में आपको चीनी और सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, राइट। तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड लिटिल तो हमारे लाइफ में थोड़े मैजिक्स होंगे। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट अ लॉट विद फीलिंग्स एवरी डे, आवर लाइफ विल ड्रामेटिकली चेंज। और ऐसे चेंज होगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर आपकी ड्रीम में आपने इतना लिखा है, आपको पता ही नहीं है आपके आगे फ्यूचर में और कितनी सारी चीजें आने वाली हैं। ओके, सो this is what she's telling us. We have to keep on being grateful all the time. Yeah. Now it's already 10:30. Yeah. So should we do it tomorrow? Actually आज एक बहुत important चीज लिखनी थी because we are talking about what we want in our life. Okay. So I think let's take it tomorrow. आपको क्या करना है, एक तो ये लिख लेना है कि I think we should stop here. Then we'll take the dream portion tomorrow. Yeah. Is that okay? So I want all of you to have a register with you tomorrow. Okay, it's like आपको एक तो बड़ा
लॉन्ग रजिस्टर या डायरी जिसमें भी आप लिख सकते हो, मतलब थोड़े ज्यादा पेजेस की, हाँ एटलीस्ट 30 पेजेस की तो होनी चाहिए आपको, वो एक तो डायरी रखनी है, या आप छोटा सा कोई भी एक, छोटा सा नहीं, आई थिंक कोई भी आप डायरी एक तो रखनी है आपको, और एक रजिस्टर चाहिए. आई वांट 2 थिंग्स विद यू टुमारो, ऑल ऑफ यू. Okay, so we are stopping here and we'll start from a magical book tomorrow. So any questions? Thank you, Swati. Thank you for reading so nicely for all of us, especially the acknowledgements. Yeah, thank you. Thank you, Yeah. Swati ji. Yeah, thank you. So normally what we do is, after we do the reading, we do our gratitude. Okay, so we'll join our hands and close our eyes and take gratitude to the Supreme. So thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for bringing us here together on this wonderful journey of gratitude and bringing abundance in our life. Thank you to the 5 elements of nature who have blessed us with abundance, have given us this wonderful fit body and given health to all my family and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone for this wonderful session and being here and being with me tonight. So if you switch on the camera, that will be very nice. We can, see each other. Yes. And tomorrow we'll be starting the actual practice. आज हम लोगों ने just introductory session किया था. तो कल से हम लोग को हमारी dream wishes जो भी है वो करने हैं. So any question till now? Hi, can you just explain the 3 rules? I think they were a bit confusing. The 3 rules are that you have to say thank you. Okay? The magical, it's like a formula. The rules are not there. It is just that you have to say thank you. You have to deliberately say thank you. And the more you are saying thank you, first is you have to say thank you. And the more you are saying it, secondly, the more you say, the more you will start feeling thank you. Okay? And the more you are feeling thank you, the third step is the more abundance you will bring in your life. These are the 3 steps. Okay? So, I mean, we have to follow 2, so the third will automatically come. Yes. Yeah. Okay. But we have to start with the first. But if you're already doing the first, the second will come and the third will come after that. Yeah, that is the formula. Thank you. Okay, thank you. Yes. Ma'am, I would like to thank you for this wonderful session. It was really informative, and we are eagerly waiting for the, all the sessions, all the chapters you will cover. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yes, so any other question, or we have just, see, the actual class is about to start, okay, but because of some time constraints, so, I could not cover that. We'll be talking about our dreams next, okay. So in the diary that you have, what you have to do is you have to think about the areas where you want to improve your life. Okay, just start with that today, and tomorrow we'll be reading how we have to write our dreams. Okay, what dreams do we have? Tomorrow we'll be starting with that, and then we will start with the actual practices. Okay, yeah. So any other question or query regarding what we read? No? Okay, very nice. So tomorrow we'll start at 9 and it will be a 1-hour session. Okay. So thank you everyone. We'll see each other tomorrow. Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Yes. Didi, should we write the objectives? I think objective writing is actually easy. I think all of us can do that at least. Objective before writing. the session tomorrow. Dream thing. Okay, but उसका तो पूरा paragraph है ना, पूरा एक तो chapter है. But we can at least write what our dream is. I mean, अपने तरह से लिख लेते हैं. हाँ, ठीक है. Okay, good idea. So we can do that. आपको देखिए क्या है, हम लोग ये जो हमारे को लाइफ में जो जॉय लाना है, right? It's like that is what Rhonda Bynes' intention is, and our intention also. Our life will become magical if we get whatever we want. तो आपको अपने ड्रीम्स हैं. ड्रीम्स माने आपको क्या चाहिए लाइफ में. इफ यू वांट अ गुड जॉब, इफ यू वांट सम हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या कैरियर में कुछ अच्छा चाहिए है, या रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करने हैं, इस टाइप का जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए कि यस ये मेरे को चाहिए ही चाहिए है. इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म थिंग, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म थिंग. माने आपको कोई हॉलिडे पे जाना है, या आपको अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, या आपको कोई पर्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको, ठीक है, उसका आप एक लिस्ट बना लो. ठीक है, या एटलीस्ट आप कल सोच लो. वो कोई भी एरिया में हो सकता है, हेल्थ,
मनी, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स, कुछ भी, आप एटलीस्ट उसके बारे में एक लिस्ट बना लो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए अपने लिए, जिससे जो आपको मिल जाए और आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इट कैन बी अ रिलेशनशिप विद योर बॉस, with your staff, okay? When I'm saying relationship, not some, you know, hanky panky kind of relationship, it's like, you know, interaction with your boss or your junior, okay? That way. हाँ, या आपको अपना घर चाहिए कोई अच्छा, या आपको कोई वेकेशन पे जाना है, या आपको चाहिए कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, आपको आपका ड्रीम वेट चाहिए, या आपको चाहिए कि आपके फिटनेस अच्छी हो जाए, या हेल्थ में कुछ जो भी चैलेंजेस हैं आपके या ब्रेकडाउन हैं वो इम्प्रूव हो जाए, जो इस टाइप की कुछ भी टाइप की चीजें हो, उसका आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। सो वेरी गुड आइडिया स्वाति, थैंक यू सो मच। तो दिस यू नो, आप अगर ये भी शॉर्ट लिस्ट कर लोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, लाइक व्हेन यू गो टू द मार्केट, आप एक लिस्ट बनाते हो ना, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बिल्कुल वैसे ही आप सोचो कि यूनिवर्स के पास आप जा रहे हो एंड आपको वहां से सामान मिलने वाला है, ठीक है, कि जैसे आप मॉल में जा रहे हो, आप एक लिस्ट बना के गए हो, वो सामान आपको खरीदना है वहां से, ठीक है। तो वैसे ही आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, ओके। सो या, so thank you everyone, thank you Swati for your suggestion, it's a wonderful thing, thank you, and we'll see tomorrow, we'll see each other tomorrow, okay? Thank you, Priya ji. Thank you, Priya ma'am. Thank you. Deepika ji, you have to switch on your camera, okay please. ये इस बार का सेशन विदाउट योर कैमरा विल नॉट डू, ओके? कल से ओके पक्का, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी अभिराज एंड सो मेनी, यस यस। प्रिया जस्ट वन क्वेश्चन, ये जो ड्रीम है हम फिर से अभी लिखें, हाउ डू वी डू इट? जो आपकी मेन ड्रीम्स हैं वो तो अगर फुलफिल हो गई हैं तो डेफिनेटली आपको फिर से लिखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी वो नहीं फुलफिल हुई, या आप सोचिए ना इतने दिन में कुछ और न्यू ड्रीम तो आ ही सकती है ना, मे बी यू हैव सीन अ न्यू मूवी, या उसमें से आपको कोई न्यू ड्रेस दिख गई, या कुछ आपको कोई हॉलीडे का स्पॉट आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है ना, एक ही जगह थोड़ी जाना है हॉलीडे पे, ठीक है, वो लिख लिया आपने। या और कुछ आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, एनीथिंग यू कैन राइट, ओके। वो लिस्ट तो आपकी है ही। So the number of dreams will increase. Yes, this thing. It can be as many dreams as you want. Okay. Under, Thank you. like, Sorry. yeah, ma'am, my query is like, can it be in point wise, like the major point, and under that we can cover the minor points? Like if Yes, I yes. have a problem with any relationship, so I have to write all the relationship with whom I want to sort my relationship. Can it be like this? Yes, it can be like that. माने आप देखिए ना, अगर आज हम घर पे हैं, ठीक है, तो मेरी मम्मा है मेरे संग, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी नीस है, हम लोग ये इतने जाने घर पे, तो मेरे को तो सबके संग रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, या तो हम एक तो ये हुआ कि इनके संग ऑलरेडी अच्छा है तो हम चाहते हैं और अच्छा हो जाए, एक है कि जिनके संग ओके टाइप से हम चाहते हैं अच्छा हो जाए, कैन राइट दैट ऑल्सो। तो एक्चुअल में आपका किसके संग बेस्ट करने का मन है, पहले तो आपको वो लिखना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप सबके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी आप जिस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहते हो या जो आप चाहते हो, it's like what do you really want, okay? It's like you go to a restaurant and you want something to eat, तो आप वहां पे रेस्टोरेंट में जाके उसको, अगर आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि डोसा भी ले आओ, इडली भी ले आओ, पास्ता भी ले आओ, मुगलई भी ले आओ, नहीं ना, आप कुछ तो उसको शॉर्टलिस्ट करके बोलोगे ना कि क्या क्या चाहिए। सो दैट वे यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू ईट, ठीक है। फिर उसमें से आपको वो वाली चीजें अभी लिखनी है पहले, ठीक है। व्हाट डू यू वांट नाउ, आपको वो लिखना है, ओके। Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. But you can write as many dreams as you want. अभी हम लोग जस्ट ये देख रहे हैं कि हमको चाहिए क्या क्या है, ओके। इट शुड नॉट बी कि उसने वो लिखा है तो हमको भी वो चाहिए, वो गया था मालदीव्स तो हमको भी मालदीव्स जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट, वो लिखना है हमको, ठीक है। तो मैम यहाँ पर जैसे अगर हमारे बहुत सारे हैं, लाइक आई हैव 10 सपोज 10 पॉइंट्स टू राइट, बट इसमें आई एम नॉट श्योर कि मुझे सबसे मतलब मुझे प्रायोरिटीज पता है कि मुझे अभी इसमें से 3 पॉइंट्स मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आई हैव रिटन ऑल द 10 पॉइंट्स। सो बिल्कुल आराम से आप 10 पॉइंट्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको सिर्फ लिखना है कि हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे करना है, 3 चाहिए कि 2 चाहिए, उसको आपको प्रायोरिटी आपको ही करना होगा, बट आप लिख अभी जितना चाहते हो आप लिख सकते हो उसके अंदर। ऑलराइट, ओके, या थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, सो whoever wants to write, जिन्होंने पहले ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, इफ यू फील कि नहीं उसमें आपने रेड शूज लिखे थे, अब आपको ब्लैक चाहिए, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप उसको स्ट्राइक करके एक दूसरा लिख सकते हो, या वो भी रहने दो, रेड भी चाहिए ब्लैक भी चाहिए तो ब्लैक भी लिख दो,
ठीक है. So you can keep on adding to your dream list because जब तक हम जिंदा है हमारी तो ड्रीम्स आती ही जाएंगी ना. हाँ, कल जैसे सलमान खान फेवरेट हीरो था, आज कोई दूसरा हो सकता है ना. तो दैट वे यू कैन, मेरे को सलमान खान से भी मिलना है और अभी कौन आया दूसरा, आई डोंट नो, उससे भी रणवीर सिंह से भी मिलना है मेरे को. सो दैट वे यू कैन कीप राइटिंग योर ड्रीम्स. या Is it okay to strike the earlier list? यस 100%. अर्लियर लिस्ट नहीं, जो ड्रीम पूरी होगी यू हैव टू स्ट्राइक दैट. Yeah, only that we have to strike, right? Yeah, only that you have to strike. Yeah. When you strike, then you feel very good. अच्छा ये भी हो गया. Yes. That gives a very good feeling. Yeah, that we've done, but she said that if you want a black shoe and then you want a red one now, so you can strike that and do that. That's why I asked. So then you have to rewrite it. उसको मैंने वैसे strike किया आपने, ठीक है? It's like then you make a new list. Okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Yeah. So wonderful. So see you tomorrow. आप अपना ड्रीम जो भी आपको अभी समझ में आ रहा है एक आप लिस्ट बना लेना, ठीक है, कि क्या क्या आपको चाहिए, and then we'll read tomorrow कि कैसे लिखना है, क्या करना है. We'll read that tomorrow. Okay, and we'll start with the actual practices. So thank you everyone. Good night and see you tomorrow. Any other questions? Sorry, any other questions? No. Okay, cool. Yeah. So just be in the journey. Yeah, thank you. Just be in the journey and you will see magics happening. Okay. And I will ask the others who have already got their dreams to share tomorrow so that it inspires others as well. ठीक है, तो जिसने अभी स्ट्राइक बोला था ना, कल सबको स्पीक करना पड़ेगा. Yes. Okay. Yeah. Thank you everyone. Good night. Thank you. Good night. Bye bye.